Okay, good morning, student. Good morning, sir. Okay, what we discussed in last lecture? Anybody? Am I audible clearly, Yes, sir. student? Yes, Okay, sir. thank you. Okay. So what we discussed in last lecture? Anyone have any idea? Methods of undetermined coefficients. Yes, we have started the method of undetermined coefficient to solve the constant coefficient higher order differential equation in non-homogeneous form. Yes or no, everybody? Okay. So when we can apply the non-homogeneous method, sorry, when we apply the non-homogeneous differential equation r of x not equal to 0. Okay. But when we can apply the undetermined coefficient method, anybody? If you have the r of x like b, that is constant, polynomial, exponential, sin x and cos kx. Okay, if you have the r of x of any of these, okay, or combination of these, then you can apply the undetermined coefficient method. But if you have the tan of x, sec x, 1 upon x, then you cannot apply the undetermined coefficient method. Keep in your mind. Okay, and we also show the table for the undetermined coefficient method. Okay, how you can select your trial solution means yp. Okay, so we already done how many steps for the undetermined coefficient? There are 8 steps. Step number 1 is find yc. Okay, that is your step number 1. Then step number 2 is compare r of x and yc. That is step number 2. Then select trial yp. That is the step number 3. Hello, sir. Find out yp dash, yp double dash, yp triple dash. That is yes, yes, सर आपकी स्क्रीन बहुत लैग मार रही yes. है। आप बोलते हो फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर दिखाई Leg. Yes, sir. Okay. Okay. Now you can tell. Is it okay now? अब दिख रहा है? अभी Yes. 8 स्टेप वाला दिखा। दिख तो रहा है सर, पर थोड़ा लेग हो रहा है। ओके ओके, अब मैंने थोड़ा उसको बाहर रख दिया है, तो यू कैन टेल मी if it is repetition, then we will do something. Okay, now fifth step, substituting all these values in given differential equation. That means yp dash, yp double dash, yp triple dash आपको जो given differential equation है उसमें substitute करना है. That sixth step, comparison से आपको ए बी सी जितने भी आपके अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट है वो सबको डिटरमाइन करना है. दैट इज द स्टेप नंबर 6. द स्टेप नंबर 7 इज you can substitute ABC in your trial YP and you will get your required YP. That is the step number 7. Step number 8, the general solution. The general solution will be y is equal to yc plus yb. So these are the 8 steps for the undetermined coefficient. So is there any doubt in these steps? Anybody? No, sir. नो सर। Okay. Now case number 1, for no similarity in the r of x and the complementary function. That is the step number, sorry, case number 1. अब case number 1 में आएगा, if there is no similarity between the r of x and the complementary function, then you have to select your trial yp from the table directly. But case number 2 suggests that if you have the similarity, that means if you have the similarity into r of x and complementary function, then you have to find out the how many times it will be repeated. Okay, so if it repeat 2 times, then you have to multiply x square to your trial yp from the table. Okay, हमने डिस्कस किया था ना ये केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2.
Yes. Yes, sir. Okay, now we reach, I think we reach up to here. Okay, मैंने आपको ये बोला था कि आप ट्राई करना, yes or no? Yes, sir. Y double dash 6 Y dash ये दिया है. यस वाई डबल, हाँ बस तो वही से हम आज स्टार्ट करते हैं. ओके, सो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द 1 minute. Yes, find general solution of the differential equation y double dash plus 6y dash plus 9y is equal to 50 e raised to minus x cos x by the method of undetermined coefficient. Okay, this is your given statement, and you can observe here your r of x is the combination of the two cases. Yes or no? Sir. है ना, यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड cos x का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको r of x में दिया है. तो व्हाट इज अवर स्टेप नंबर 1? सो स्टेप नंबर 1 इज द फाइंड आउट द yc. So here you can see the auxiliary equation is m square plus 6m plus 9 equal to 0, and if you solve this auxiliary equation, then you will get your 2m in repetition form. That means m is equal to minus 3 and m is equal to minus 3, because this is your m plus 3 whole square is equal to 0. Yes or no? Yes, sir. So we can apply the case number 2 for the yc. That means hence the roots of, or here the roots of the characteristic equation are real and same. Therefore our required yc will be yc is equal to c1 plus c2x into e raised to minus 3x, where c1 and c2 are arbitrary constant. So this is our step number 1. हमने ये step number 1 यहाँ complete कर दिया. What is our step number 2? Anybody? R of x. Check the Y. similarity between R of x and YC. Yes, 1 minute. Huh? Soon. Yes, step number 2 is find out the similarity between r of x and yc. Okay, so here our given r of x is 50 e raised to minus x cos x. Okay, and your yc is c1 plus c2x e raised to minus 3x. So is there any similarity between them? No. No. Okay, so that means you have to select your trial yp by using the table directly. Okay, so यहाँ पे yp is equal to क्या हो जाएगा? तो e raised to minus x, तो e raised to minus x as it is रहेगा. अब cos x के लिए हम क्या लेते थे? a cos x plus b sin x. Is it clear, everybody? Yes. Yes, sir. Okay, now our next step is find out the yp dash, yp double dash. Okay, whatever we require in our statement. So yp dash will be e raised to minus x, a cos x minus b sin x minus a sin x plus b cos x. ये तो आप कर ही सकते हो ना? yp dash तो फाइंड कर सकते हैं कि नहीं हम? Yes. यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा. ओके, सो ई रेज टू माइनस एक्स एज इट इज रखा मैंने. अब ए कॉस एक्स है तो उसका हो जाएगा माइनस ए साइन एक्स. ओके, प्लस बी कॉस एक्स हो जाएगा. एंड इफ यू डिफरेंशिएट ई रेज टू माइनस एक्स, दैट मीन्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स, एंड यहाँ पे पूरा एज इट इज, दैट मीन्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स. ओके, दिस इज योर yp dash, and if you arrange them, then you will get this one, e raised to minus x minus a plus b cos x, means cos वाले को साथ में कर दिया. So minus a plus b cos x minus e raised to minus x a plus b sin x. This is your yp dash. Is Sir. there any? Yes, yes. सर आपकी स्क्रीन लैग हो रही है, पता नहीं चला सर, एक बार रिपीट कराओ ना. Means क्या पता नहीं चला बेटा? सर सबको यही आप बोल प्रॉब्लम रहे है. फिर लिख दिखाई दे रहा है मैं सर. Everybody, सबको यही हो रहा है. Yes, sir. Lag हो रहा है थोड़ा. Yes, sir. Lag. There is a network issue in my house. Okay, 1 minute, I will sort out it.
ओके नाउ देखते हैं चलो क्या होता है. ओके चलो आई रिपीट इट. yp डैश क्या होगा? तो फर्स्ट यू हैव टू यूज द प्रोडक्ट रूल. So e raised to minus x as it is, or differentiation of a cos x plus b sin x will be minus a into sin x plus b into cos x. Now if you differentiate e raised to minus x, that means minus e raised to minus x, and second bracket is as it is, that means a cos x plus b sin x is as it is. Now is it okay? Yes, sir. Now if you take the common for the cos x into e raised to minus x, that means will e raised to minus x to cos x मिलेगा coefficient of minus a plus b, and also for the sin x, that means minus e raised to minus x a plus b into sin x. This is your yp dash. Now is it clear everybody? Yes, sir. What about others? Yes, sir. Oh. Yes, sir. Now Yes, if you sir. find yp डबल डैश, चलो yp डबल डैश इसी में से फाइंड करते हैं, जो हमने लास्ट में लिखा है उसी में से हम निकालते हैं. सो yp डबल डैश क्या होगा? सो e रेस टू माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस a प्लस b में एज इट इज रख रहा हूँ. अब e रेस टू माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस e रेस टू माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, एंड फिर से उसी का करेंगे तो प्लस e रेस टू माइनस एक्स a माइनस a प्लस b एज इट इज रहेगा, और cos x का हो जाएगा sin x, लेकिन वो माइनस हो जाएगा इसलिए वी पुट हियर माइनस. ओके, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म. सेम वे वी कैन फाइंड द डिफरेंशिएशन फॉर सेकंड टर्म. सो यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस माइनस प्लस e रेस टू माइनस एक्स a प्लस b sin x. मैंने पीछे वाला एज इट इज रखा. नाउ आई सॉल्व फॉर द sin x. सो e रेस टू माइनस एक्स a प्लस b इंटू साइन एक्स का हो जाएगा cos x. नाउ यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन बोथ द टर्म, दैट मीन्स e रेस टू माइनस एक्स तो दोनों में कॉमन ही है, तो उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ. ओके, अब थिंक अबाउट द फर्स्ट cos x एंड देन sin x. ओके, सो cos x में क्या बचेगा बताओ. चलो तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा. यस, वेरी गुड. सो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा. उसके बाद यहीं पे माइनस b, उसके बाद सेकंड यहाँ पे cos है, सो यहाँ पे प्लस a है ना. नहीं, कुछ गड़बड़ कर दिया ना हमने. सही है सर. हाँ, a प्लस बी. प्लस b. 2a आएगा, b भी कैंसिल. यस सर. हाँ, अभी 2a प्लस आएगा बी ना. लिख दो. यस. तो यहाँ पे तो yp डबल डैश ये आ रहा है ना, तो ये आना चाहिए ना. तो कहीं गड़बड़ किया है, देख लेते एक बार. ओके चलो, माइनस a प्लस बी. ओके, e रेस टू माइनस एक्स, तो माइनस हो गया, cos x को एज इट इज रखा है, ये माइनस हो गया, e रेस टू माइनस एक्स माइनस a प्लस बी सही है, प्लस e रेस टू माइनस एक्स का हमने माइनस करके प्लस कर दिया, a प्लस बी साइन एक्स सही है, प्लस e रेस टू. ओके, यस 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 यस, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा ना, माइनस आएगा ना. माइनस अंडरस्टैंड? आएगा. हाँ, Yes, वहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हुआ था, e रेस टू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन. ओके, नाउ वी गॉट इट. ओके, तो यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस a और यहाँ पे मिलेगा माइनस b. ओके, अंडरस्टैंड एवरीबडी? सेम Yes. वी कैन फाइंड द sin x. ओके, सो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस a माइनस b, यहाँ पे प्लस a प्लस b. ओके, सो यू कैन सी हियर द कैंसल आउट द टर्म्स. सॉरी, यहाँ पे मैंने b को कहाँ कैंसिल कर दिया, a कैंसिल होगा. ओके, यहाँ पे a विल बी कैंसल आउट, सो a कैंसल आउट, एंड यहाँ पे b कैंसल आउट. सो अवर फाइनल आंसर इज e रेस टू माइनस एक्स. ओके, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2b cos x, एंड यहाँ पे हो जाएगा 2a sin x. इज इट क्लियर एवरीबडी? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? किसी को भी प्रॉब्लम है? ओके, चलो अब यही
लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे 2 बाहर ले लिया, e रेज टू माइनस एक्स ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप? ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप क्या था हमारा? Substitute. Substituting the values of yes yp dash and yp double dash in the given differential equation. So we get, so हमारा जो differential equation था y double dash plus 6y dash plus 9y, so y double dash plus 6y dash plus 9y is equal to क्या था हमारा? 50 e raised to minus x into cos x. Okay, so this is our given differential equation. और y double dash की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? yp double dash. Yes, very good. So यहाँ पे 2 e raised to minus x into a sin x minus 2b e raised to minus x cos x. Okay, वो मेरा yp double dash था. Now I substitute the 6 into y dash, दैट मीन्स सभी को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो 4 टर्म्स मेरे पास है, तो मैं इंडिविजुअली यहाँ पे उसको डिफरेंट कर ही देता हूँ, है ना, मैं उसको स्प्लिट कर देता हूँ। दैट मीन्स माइनस 6 a इंटू ई रेज टू माइनस एक्स कॉस एक्स। ओके, उसके बाद क्या होगा? प्लस 6b ई रेज टू माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। देन नेक्स्ट minus 6 a e raised to minus x into sin x. Okay, and last होगा minus 6b e raised to minus x into sin x. ऐसा क्यों किया? क्योंकि जल्दी हम sin and cos को अलग कर सकते हैं इसीलिए। ओके, प्लस 9y में क्या करना पड़ेगा हमको? 9 इंटू yp, तो 9 इंटू e raised to minus x into a cos x. ओके, हमने पहले cos को लिया था तो हम cos को लिखा, प्लस 9 इंटू e raised to minus x b sin x. ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50 e raised to minus x cos x. So is there any doubt in this step? Anybody? No, sir. Okay. What about others? Please. No doubt, sir. ओके, अब पहले हम करते हैं जो हमको चाहिए। कॉस है ना, तो पहले कॉस को ही निपटा देते हैं। तो कॉस एक्स के लिए क्या क्या है हमारे पास, उसको पहले आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ चलो, हाँ हेलो, एनी प्रॉब्लम बेटा? No, sir. Comparison ऐसा बोल रहा था कोई। ओके, कॉस एक्स। ओके, तो कॉस एक्स के लिए ये स्टेप है, तो पहले मैं कॉस एक्स वाले सभी को हाईलाइट कर देता हूँ, है ना, ताकि हम कोई छूट ना जाए। ये रहेगा। यस, देखो तो क्या होगा? माइनस 2b। ओके, उसके बाद ई रेज टू माइनस एक्स को भी हम बाहर ले सकते हैं ना, तो ई रेज टू माइनस एक्स भी मैंने बाहर ले लिया। सो माइनस 2b, यहाँ पे माइनस 6a, उसके बाद है प्लस 6b, then we have the next term is 9a. ओके, प्लस करके हमको क्या करना है? साइन के लिए सेम प्रोसीजर, प्लस यहाँ पे साइन x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स। सो यहाँ पे साइन के लिए भी हम लिख देते हैं। सो साइन के लिए क्या मिलेगा? देखो, साइन के लिए बाकी की सारी टर्म साइन के लिए ही होगा। सो दैट मीन्स 2a, उसके बाद है नेक्स्ट है माइनस 6a, देन माइनस 6b, एंड लास्ट में है प्लस 9b, एंड इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? इक्वल टू 50 e raised to minus x cos x. So is there any doubt in this step? No, sir. Okay. Now if you solve or if you cancel some terms, then we will get minus 2b plus 6b. कितना हो जाएगा? 4p. 4b. 4b. ओके, तो यहाँ पे 4b और यहाँ पे माइनस 6a प्लस 9a, दैट मीन्स 3a इंटू cos x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, प्लस यहाँ पे 2a माइनस 6a, तो माइनस 4a, है ना, और यहाँ प्लस 3b इंटू साइन एक्स ई रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू 50 e raised to minus x cos x. Okay, now
compare both the sides. So what we get here after comparison? 4b plus 3a is equal to 50, and second one is minus 4a plus 3b is equal to 0. चलो इसमें से मुझे a and b की वैल्यू बताओ तो, जल्दी सॉल्व करके बताओ. ये तो इजी है ना, आप बहुत साल से ये तो कर रहे हैं. Find out the value of a and b quickly. कोई एक इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो या फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, है ना, तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा. यस, a6 and b 6 and 8. यस, वेरी गुड. तो यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 8. एवरीबडी गॉट इट? मिल जाएगा ना सबको? यस. ओके, अब ये मिल गया है. ओके, अब यहाँ पे देखो. So yp will be e raised to minus x. a means 6 cos x plus 8 sin x. तो ये हमारा yp भी हमारे पास है. और yp मिल जाने के बाद हमारा लास्ट स्टेप क्या है? Therefore the general solution is y is equal to yc plus yp. So what is our yc? So c1 plus c2x e raised to minus 3x plus e raised to minus x 6 cos x plus 8 sin x. That is our yp. So we substitute both the here, where c1 and c2 are arbitrary constant. So is there any doubt, any question in this example? Anybody? No, sir. No, sir. Okay, thank you for your confirmation. Now we go for the next example. Okay, so you can see here your next statement is apply the method of undetermined coefficient to solve d square y by dx square plus 2 dy by dx minus 35y is equal to 12 e raised to 5x plus 37 sin 5x. So first we want to find the yc. So क्या करेंगे यहाँ पे? Rewriting the given differential equation as क्या हो जाएगा? d square plus 2d minus 35 into y is equal to 12 e raised to 5x plus 37 sin 5x. ओके, ये हो गया रीराइटिंग वाला. अब रीराइटिंग करने के बाद ऑक्सिलरी. सो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या होगा? m square plus 2m minus 35 is equal to 0. चलो इसको सॉल्व करें तो m plus 7 m minus 5. यस, तो ये फैक्टराइजेशन इसका होगा m plus 7 and m minus 5. ओके, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख लिया है m plus 7 m minus 5. सो वी हैव m is equal to minus 7 and 5. So which case will be applicable here? First case. First case. Okay. Therefore, yc is equal to c1 e raised to minus 7x plus c2 e raised to 5x, where c1 and c2 are arbitrary constants. Okay, done. ये मैंने yc तक हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया. व्हाट इज योर स्टेप नंबर 2? एनीबॉडी? सर यस सर, जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में इक्वल्स टू 0 करते हैं तो सर एक स्टेटमेंट लिखना नहीं पड़ेगा कि हम कंसीडर कर रहे हैं RH को 0? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वी आर डीलिंग विद yc ओनली, है ना. तो यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन का ही मीनिंग यही होता है कि f of m इज इक्वल टू 0. हमने जो डेफिनेशन लिखा था ना, वही पे हमने लिखा था, आपको याद है तो उसको हम f of d of y is equal to 0 बोलते थे. उसमें से ऑक्सिलरी इक्वेशन की डेफिनेशन में क्या लिखा था हमने? f of m is equal to 0. ओके, ये ऑटोमेटिकली f of m is equal to 0 ही हो गया ना, तो वहां पे कुछ मेंशन नहीं करेंगे तो भी चलेगा. ओके, डन. यस. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप.
R of x y Yes, to compare. yes. Here r of x is equal to क्या है हमारे पास 12 E e raised to raised to 5x. 5x plus 37 sin 5x। ओके चलो ये हमारा r of x है। तो टेबल के हिसाब से पहले मैं इसका yp लिख दूंगा। ओके सो बाय अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट मेथड ओके अब पहले टेबल के हिसाब से yp लिखते थे। चलो टेबल के हिसाब से yp क्या होगा a e raised to 5x a e raised to 5x plus b sin 5x plus c plus c cos 5x. cos 5x ले सकते हैं कि नहीं? ओके एवरीबॉडी। हाँ अब जो हमारा स्टेप था वो स्टेप के हिसाब से स्टेप नंबर 2 के हिसाब से स्टेप नंबर 2 के हिसाब से यहाँ पे कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है वो देखो। कंपैरिजन किया दोनों के बीच में तो कुछ सिमिलैरिटी मिल रहा है। Yes sir. किसमें सिमिलर यस e रेस टू 5x यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना। यहाँ पे देखो e रेस टू 5x e रेस टू 5x आर sorry is present in both the form yc and r of x। अब how many times are repetition? 2 times. one times ना yc में 1 2 से time मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. हाँ तो Yes. 1 टाइम है ना 1 ही फैक्टर है ना वहाँ पे। ओके तो जो e रेस टू 5x है उसको एक x से आपको मल्टीप्लाई करना है। अंडरस्टैंड? और ये कहाँ से आया? सो यहाँ पे क्या लिखेंगे ड्यू टू द मॉडिफिकेशन रूल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ मॉडिफिकेशन रूल। Yes sir. ओके तो यहाँ पे एक्चुअली हमारा ये yp क्या हुआ सो yp इज इक्वल टू ax e रेस टू 5x प्लस b sin 5x प्लस c cos 5x। ओके डन गॉट इट। Yes sir. Yes sir. ओके अब ये देखो रियल लाइफ सिचुएशन जैसा हो गया। रियल लाइफ में कोई चोर है वो एक घर में एक बार चोरी कर देगा तो वापिस जाएगा उस घर में? नहीं जाएगा। आफ्टर 10 ईयर्स या 15 ईयर्स जाएगा है ना। तो यहाँ पे देखो वाईसी में ऑलरेडी वो बैठा था इसलिए उसने दूसरे घर में चला गया। देखो एक्स वाले घर में चला गया है ना। बट इट इस हिसाब से भी याद रख सकते हो आप कि रिपीटेशन नॉट अलाउड क्योंकि ई रेस टू 5x आपने यहाँ पे रखा होता तो ये तो ऑलरेडी वहाँ पे बैठा है तो आपको दूसरी ही जगह पे जाना पड़ेगा। तो दूसरी जगह कौन सी है? एक्स वाली है। दैट मीन्स एक्स इंटू ई रेस टू 5x। अंडरस्टैंड? गॉट इट एवरीबॉडी? Yes sir. है ना। चलो अब नेक्स्ट में चलते हैं yp डैश फाइंड करेंगे। सो yp डैश व्हाट इज yp डैश? सो यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल। सो 5ax e रेस टू 5x प्लस a e रेस टू 5x। ओके ये मेरा फर्स्ट स्टेप का हो गया। अब सेकंड के लिए प्लस 5b sin 5x का हो जाएगा cos 5x। ओके प्लस नहीं माइनस हो जाएगा यहाँ पे 5c sin 5x। Is it okay everybody? Yes sir. Yes sir. yp डबल डैश अगेन प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे फिर से मुझे मिलेगा 5 इंटू 5 25। ओके सो यहाँ पे 25 ax e रेस टू 5x प्लस 5a e रेस टू 5x प्लस यहाँ पे 5a e रेस टू 5x यहाँ पे माइनस 25b sin 5x और यहाँ पे माइनस 25c cos 5x। डन? yp डबल डैश। Yes sir. Yes sir. नेक्स्ट हमारा स्टेप है सब्स्टिट्यूटिंग yp डैश yp डबल डैश इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके सो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या था हमारा y डबल डैश कर दूँ तो चलेगा ना। सो यहाँ पे y डबल डैश प्लस
क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मीन्स वाई डबल डैश ही होता है, प्लस 2y, यस सॉरी, यस वाई 2y डैश माइनस 35y इज इक्वल टू हमारे पास था 12 ई रेस टू 5x प्लस 37 साइन 5x। ओके, ये मैंने जो दिया है वो यहाँ पे एक बार लिख दिया ताकि हम इसमें सब्स्टिट्यूशन कर पाए, क्योंकि वो गलती ना हो जाए। ओके, वाई पी डबल डैश तो वाई डबल डैश की जगह पे, तो यहाँ पे देखो 25 ए एक्स ई रेस टू 5x, यहाँ पे 5 प्लस 5 करके टोटल 10 कर सकता हूँ कि नहीं, दोनों ही दोनों को मर्ज कर दिया है ना। यहाँ पे माइनस 25b साइन 5x माइनस 25c कॉस 5x। ओके, ये मेरा हो गया फर्स्ट वाई डबल डैश, प्लस 2 इंटू वाई डैश, तो वाई पी डैश तो 5 इंटू 2 10 ए एक्स ई रेस टू 5x प्लस 2a e raised to 5x plus 10b cos 5x minus 10c sin 5x, लास्ट में मेरा y डैश सॉरी y, तो यहाँ पे y के लिए 35 इंटू वाई है। ओके, तो पहले यहाँ पे माइनस है ना, 35 इंटू फर्स्ट क्या है, यस 35 ए एक्स हो जाएगा, दैट मीन्स 35 ए एक्स ई रेस टू 5x माइनस 35 बी इंटू साइन 5x माइनस 35 सी इंटू कॉस 5x इज इक्वल टू 12 ई रेस टू 5x प्लस 37 साइन 5x। ओके, ये थोड़ा लेंथी है लेकिन इजी है, उतना कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बोला था, वो आपको याद है कि नहीं चेक कर लेते हैं। व्हाट वी शुड डू नेक्स्ट, कंबाइन, मतलब एच वाले टर्म से अलग अलग करेगा। मैंने आपको बोला था कि अगर आपने सब कुछ सही किया होगा तो जो आपने x से मल्टीप्लाई किया है ना टर्म वो कैंसिल पूरा हो जाएगा। ऑटोमेटिकली टर्म कैंसिल हो जाएगा। मीन्स x इंटू ई रेज टू 5x वाला टर्म्स आप फाइंड आउट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे 25 प्लस 10 35 हुआ माइनस 35, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है ना। तो यहाँ पे e रेज टू 5x के लिए पहले हम करेंगे, उसके बाद साथ में हम साइन को ले लेंगे एंड लास्ट में हम कॉस को ले लेंगे। ओके, कॉस 5x, और यहाँ पे उसका आर ऑफ एक्स तो सेम ही है, सो 12 ई रेज टू 5x प्लस 37 साइन 5x। ओके, दैट इज द गिवन आर ऑफ एक्स। अब e रेज टू 5x के लिए हम क्लब करें तो कितना हो जाएगा, सो 10a, हाँ 10a प्लस 2a। ओके, दो ही जगह पे था तो यहाँ पे 10a प्लस 2a कर दिया। अब उसके बाद साइन के लिए, तो साइन के लिए पहले आइडेंटिफाई करते हैं, तो यहाँ पर साइन बैठा है, यहाँ पर साइन है, यहाँ पे 3 स्टेप में है, तो माइनस 25b माइनस 10c एंड यहाँ पे माइनस 35b। ओके, देन कॉस के लिए तो माइनस 25c, उसके बाद यहाँ पे प्लस 10b एंड लास्ट माइनस 35c। ओके, तो ये मेरा हो गया। सो इज देयर एनी डाउट इन दिस स्टेप? नो सर। अब कंपैरिजन से आप देखेंगे तो यहाँ पे 12a इज इक्वल टू 12 हो गया, डन। फर्स्ट तो हो गया, a इज इक्वल टू 1। यस ओके, यस सर। अब साइन वाला देखते हैं, तो यहाँ पे देखो माइनस 25 माइनस 35, तो टोटल कितना हो जाएगा, 60 माइनस 60b माइनस 10c इक्वल टू 37 वेरी गुड। अब कॉस के लिए माइनस 25 माइनस 35, दैट मीन्स टोटल हुआ माइनस 60c प्लस 10b इक्वल टू 0। तो अब पहले सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, थर्ड को करेंगे तो इजी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो 10 पहले कॉमन ले लो और उसको 0 के साथ भेज दो, तो क्या हो जाएगा,
-6c प्लस b इक्वल टू 0 हो गया ये तो। अब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो b इज इक्वल टू 6c हो गया। अब b इज इक्वल टू 6c की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे -360b नहीं c -1/10 c -1/10 yes. यस c हो जाएगा। ये -10c इक्वल टू ये 37, तो यहाँ पे -370c इज इक्वल टू 37, सो c इज इक्वल टू -1/10। ओके, अब c मेरा 1/10 हो गया, -1/10, तो b भी ऑटोमेटिकली मेरा मिल जाएगा -6/10, लेकिन उसको आप Yes. सॉल्व करेंगे तो -3/5। 3/5 ओके, सो a b c हमारे पास आ गया है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? Yes, sir. yes sir therefore yp is equal to क्या था, a into x into e raised to 5x, that means x into e raised to 5x plus b। अब आप Cos ये जब 5x. हाँ साइन एंड कॉस वाला आपको 100% यहाँ पे श्योरिटी लेना है, क्योंकि कभी कभी आप साइन को आगे ले लेंगे कॉस को आगे लेंगे, तो थोड़ा ध्यान से करना। b इंटू साइन है ना, तो यहाँ पे -3/5 इंटू साइन 5x -1/10 इंटू कॉस 5x। सो आगे पीछे हो जाए लेकिन उसका कांस्टेंट आप चेंज मत कर देना। ओके, सो yp आ गया, तो व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप? general solution So general solution. Y equal to y. required general solution is y yc is plus y yes y is equal to yc plus yp। सो हमारा yc क्या था, तो y is equal to c1 e raised to -7x plus c2 e raised to 5x plus x e raised to 5x minus 3/5 sin 5x minus 1/10 cos 5x, where c1 and c2 are arbitrary constants. Okay, so is there any doubt, any question in this example? Anybody? No, sir. No, sir. Any question, student? Please, if you have question, then please discuss with me. Okay, Sir, ये थोड़ा some solution कुछ ज्यादा ही लेंदी है हाँ लेंदी है, लेकिन सिंपल है, उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे तो इससे भी पीछे वाला जो स्टेप है उसमें इससे भी एक स्टेप ऐड हो जाएगा, मेथड जो आएगा नेक्स्ट मेथड उसमें। लेकिन अगर आपने सब कुछ सही किया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो है ना टोटली आर ऑफ एक्स के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे आर ऑफ एक्स कितना 2 टर्म दिया था, तो ऑटोमेटिकली लेंदी हो जाएगा, क्योंकि उसका वाईपी डैश वाईपी डबल डैश वो सब कुछ इंडिविजुअल फाइंड करना पड़ेगा, और वो लेंदी होगा तो अकॉर्डिंगली कंपेरिजन में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना। इसलिए अगर एक ही स्टेप है तो इजी हो जाएगा। डन। सर एमसीक्यू में पूछा तो एमसीक्यू में तो इसमें से नहीं पूछे, 100% उसी में आएगा। एमसीक्यू में इसमें क्या पूछ सकते हैं, टेबल पूछ सकते हैं। ओके, YP निकालना है। वाईपी, हाँ ट्रायल, व्हाट शुड बी दी ट्रायल वाईपी फॉर दी, आपको एक टर्म दे देंगे। डन। Okay. है ना, उसमें इसमें तो दूसरा कुछ नहीं पूछ सकते आपको, है ना। Yes. यस सर है ना, तो उस हिसाब से आपको देखना है। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल फोकस करते हैं। अप्लाई द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स टू सॉल्व। ओके, मेरा टाइम भी हो गया, मुझे नेक्स्ट लेक्चर भी है। ओके, चलो इसके लिए ट्राई करेंगे, यस सर है ना। तो चलो ये स्टेटमेंट लिख Yes. दो आप। हाँ, स्टेटमेंट लिख दो। देखो इसमें एक ही स्टेप है, तो आपका थोड़ा एग्जाम्पल है, Easy थोड़ा रहेगा। हाँ इजी रहेगा, है ना, थोड़ा लेंथी कम हो जाएगा। लेकिन पीछे कंडीशन दे दिया है तो ऑटोमेटिकली लेंथी हो गया। वो तो सब्स्टिट्यूट करना है, easy है। C1 एंड C2 फाइंड करना है। चलो एग्जांपल नंबर 2 सबको ट्राई करना है ना। हम नेक्स्ट क्लास में सर। डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। यस यस बोलो। सर yc भी एक सॉल्यूशन है ना इस डिफरेंशियल इक्वेशन का YC क्या है? yc भी एक सॉल्यूशन है ना सर डिफरेंशियल हाँ इक्वेशन हाँ का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है किसका? f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू 0 का, होमोजीनियस का। ओके तो हम डायरेक्ट ऐसे पुट अप नहीं कर सकते डिफरेंशियल इक्वेशन में yc तो y की जगह पे
y की जगह पे y से पुट अप करके क्या करेंगे फिर? C1 और C2 में कुछ रिलेशन मिल जाएगा। C1 एंड C2 का रिलेशन, ओके, वो उस हिसाब से बोले, लेकिन यहाँ पे कंडीशन फिर आप कैसे यूज करेंगे? सेपरेटली फाइंड करना पड़ेगा। हाँ, सेपरेटली करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो आपका y है वो कॉम्बिनेशन में है, yc प्लस yp के टर्म में है। ओके ओके, यस है ना? हाँ, वो क्या है कि दोनों का कंबाइन करके आपको y मिल रहा है, तो आप डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। गॉट इट? यस यस सर। है? ओके। इज देयर एनी डाउट एनीबॉडी इन आवर टुडे सेशन? नो सर। नो सर। ओ सर। Okay, so we stop here.